Mm. Hi guys. So continuing in our DSA course, we were on strengths. So let's see this. Convert a sentence into its equivalent mobile numeric code. So yeah, honestly, I've done a question when you are given some digits like 2, 3, 4, and then you can find out how many possible strings you can make using this 2, 3, 4, right? That can be done. That question is also, I would state, as famous. And yeah, you might have seen that, but this is something different. So that is the first thing, that this question is obviously, this is very different in terms like what you are returning, what you are given. So you, in that question, you are given digits and you are returning strings, and the question entirely was different. Number of possible permutations you had to return, number of possible, yeah, like what can be the possible strings that you can form using those things. But over here the thing is very different. I would not state that whether this is easy or that is easy, because that is an individual opinion. But I would say that both are simulation. Okay. For example, geeks for geeks, how can you create this, right? For example, a string, let's say ABCD, how can you create that? You can create by pressing A one time, first for A. How can you create B? Simple, that you have to do. Pressing 2B two times, no, pressing 2 times. How can you create C? Pressing 2 3 times. That's how you create C. And that is what you need to do for each character A to Z, or even hash, or even zero. Not zero, but yeah, like it depends, like what they are asking about. First of all, like ABC2 or ABC only. Are they including digits also? Like if they say, let's say, what is the way to create 4, 5, 6, right? So do you say keep press 4 times, then only you will get 4. Press 5 4 times, then only you get 5, and press 6. Yeah, so that many times, 4 times, then you get 6. So is it given or not? Like first of all, let's consider, like yeah, as they have not given any constraints, so we can think they are only doing on lowercase characters. Okay, that can be done. Hello world and approach, they are just telling, but they have not mentioned constraint. That's why I was asking for some question that I can practice. I think this is a question: convert a string into equivalent mode. Yeah, so I think we don't even need to do this because this is easy simulation. And yeah, simulation, easy or not, that depends on opinion, but it is simulation. Like given constraints are, characters can be capital alphabet, space can be space, empty space, or capital alphabets, and that is all. Okay, not going for numbers, not going for digits, not going for, yeah, like, okay, empty space also, we are going for empty space. How they do it? Empty space, press 0 one time for space. Okay, where they have mentioned, okay, star, they are also not going for star. So that's what you can do. You can create a mapping of size 26 or 27. Yeah, 27 basically, 26 character, and 27 basically for the space mapped with 0. So whenever someone says space, you say 0. Okay, when someone says G, you say 4. When someone says O, you say 6 3 times. Okay, 6 6 6. Or that's how you go, like F ke liye 3 times. So yeah, that's all. Now let's move to the next one. Yeah, man, like direct simulation, as you can see, also directly. So the what is the code for that? I personally believe like mapping should be good. So you go for, yeah, you can like hard code mapping. Oh no, no, don't do hard, because mapping will require hard coding. Okay, don't do that. So first of all, see what character you are at. Okay, then convert it into something digit, not digit, but it's integer equivalent. Integer equivalent for yeah, shift to A. So for A it is 0, for B it is 1, and so on. Like yeah, minus 20. You can just directly get it as, you know how, that this character minus capital A as a character. So you will get the integer equivalent. After that, you see how many modulo 3 it is. Okay, if it is greater than 6, then see how many modulo 4 it is. Okay, yeah, that simulation you can do ki how many modulo 3 would work, I think. uh, okay, and you just need to special handle for S or Z, or yeah, that's what you need to say. Yeah, just only for S, I think, because yes, 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 if it is greater than S or not. Okay, if it is greater than S, then you have to do something. If it is lesser than S, then you can simply see what is modulo and what is divider. So for example, for M corresponds to let's say what is divided by 3, but it will come as 6. Why? Because 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 8.
8 is corresponding to 4. How 8 is corresponding to 4? You say 8 प्लस वन कर लो, ओके, प्लस वन, ओके, विच इज 9 डिवाइड बाय 3 कर लो, विच इज 3 प्लस वन कर लो, बिकॉज वन पे कुछ नहीं है, ठीक है। दैट्स हाउ यू लाइक यू गेट द नंबर, यू देन डू प्लस वन, बिकॉज जीरो ए हम मैप कर रहे हैं, और या सो डू प्लस वन फॉर दैट, then divided by 3, so 9 divided by 3 and it comes out as 3, and do plus 1, right? That's how you can go up till o will get, you will get as whatever number, yeah, like, yeah, 3, 6, 9, 12, 15. O is 14. ठीक है, 14 indexing. So you plus 1, 15, you get 5. Then you do plus 1, you get 6. Okay, 6 how many times? Then do modulo. कि अच्छा 14 was modulo 2. Or you can say if it is modulo 0, 15 is modulo 0. So 3 times. Okay. M is modulo 1. So 1 time. N is modulo 2. 2 time. And that is modulo 0. So 3 times. And then you see कि अच्छा R तक it would work, R तक it would work, and then you say if it is equal to S, then how it is, like S के लिए you can do direct simulation, like for S this is the number, okay, okay, fine, and for T you say like T कितना आया, कुछ भी आया, right, and you saw कि ये ऐसे एक बड़ा था, तो मैं अभी माइनस वन कर लूंगा पहले, ठीक है, माइनस वन करूंगा और फिर डिवाइड बाय 3 करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं या यू कैन डू सम काइंड ऑफ सिमुलेशन फॉर बस हैंडलिंग फॉर टी, एंड उसके बाद के सब की सिमुलेशन सेम होगी। जैसे टी के नंबर है क्या एक्चुअली, लाइक 3, 6, 9, 12, 15, 4, 19, इट वुड बी 20, ठीक है, 20 को मेरे को 8 से मैच कराना है। जनरल एल्गोरिथम जो थी मेरी कि यू गेट 20 as 20, okay, this was like what, 15, या 15 दैट वाज, तो एक्चुअली तो ये टी 20 नहीं आएगा, 19 आएगा, प्लस वन करा होगा, 20 आया, 20 को मैंने डिवाइड बाय 3 करा, ओके, इट कम आउट एज समथिंग लाइक 6, देन तुमने प्लस वन करा, ठीक है, 7, 20 डिवाइड बाय 6, 20 को 21 करूँ क्या, 1 2 3 तुम्हारा 2 आया होगा, प्लस वन करो, ठीक है, 3, वाई इट इज कमिंग एज 15 तक सही था, 15 डिवाइड बाय 3 करा मैंने, अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, 15 डिवाइड बाय 3 करा मैंने, ओके, 15 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ओ, तो मेरे को मिला कितना नंबर 5, मैंने कहा प्लस वन करो बिकॉज वन पे कुछ नहीं था, ठीक है। सिमिलरली यू गेट 20, 20 डिवाइड बाय 6 प्लस वन करो, 13, 16, 17, 18, तुम्हें 18 मिला, डिवाइड बाय करा, तुमने 3 से तुम्हें 6 मिला, प्लस वन करा 7 की वजह से, 19 मिला, डिवाइड करा, अच्छा, ओके ओके, अभी 15 को देख के हमें लगा कि डिवाइड बाय 3 करके प्लस वन करना है, इट्स नॉट लाइक दैट, वो एक्चुअली लाइक 15 पे भी यही हो रहा है, और 14 होता तो डिवाइड बाय 3 करते कितना आता, 3 आता, ओनली 3, एंड दैट इज मैच्ड इन दिस 16, 15 हमारा 6 से मैच हो रहा है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड, 14 भी हमारा 6 से मैच हो रहा है, 13 भी हमारा 6 से मैच हो रहा है, ओके, सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज हैपनिंग, actually 13th character है, 3 3 3 3 is 12, and this is the 13th character, and that is going with 6, and that we have to believe because 13 divided by 3 करेंगे तो हमें मिलेगा, look 3 से तो बड़ा है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो 1 2 3 से तो बड़ा है, ठीक है, 3 से, एक सेकेंड, 4 से बड़ा है ब्रो, 13 divided by 3 is equal to 4, okay, 4, and 4 completely exhaust हो गए, 4 completely exhaust हो गए, मतलब 2 exhaust हो गए, 3 exhaust, 4 हो गए, 5 exhaust हो गए, ठीक है, ओके, गॉट इट, तो 4 प्लस 2 तो करना ही पड़ेगा, प्लस 1 करना ही पड़ेगा कि भाई इतने तो एग्जॉस्ट हो ही चुके हैं, ठीक है, ओके, 5 पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ओके, एंड यू आर मॉड्यूलो 1, तो भाई 6 में आओगे आप, ओके, ठीक है, तो जैसे 4 आया तो हम बोलेंगे कि यू कैन बी द पार्ट ऑफ इधर 5, और यू कैन, नो 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 नो, या यू कैन बी द पार्ट ऑफ 5 अगर वो केवल 12 होता, विच इज जस्ट 4 आया, सो यू से कि गो टू 5, ओके, बट 4 मॉड्यूलो कुछ आया, तो हाँ ऐसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाइंग अ बिट, कि डिवाइड करा और अपर बाउंड देख रहे हैं, लोअर बाउंड नहीं देख रहे,
लोअर अपर बाउंड तो इसका जैसे 4 है, सॉरी लोअर बाउंड इज 4 बट अपर बाउंड इज 5, 3 into 5 या। सो लेट्स सी अपर बाउंड, तो अपर बाउंड देखा इसके लिए भी। सो 15 13 के लिए सही है, 14 के लिए सही है, 15 के लिए अपर बाउंड नहीं देखेंगे, उसके लिए एग्जैक्ट है तो वही देख लेंगे, ठीक है। तो या काइंड ऑफ या ऐसा कर सकते हैं कि +1 तभी करना है इफ देर इज अ मॉड्यूलो, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द मॉड्यूलो हम और प्लस करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज अ मॉड्यूलो, ठीक है, मॉड्यूलो लेट्स से n के लिए चलते हैं, मॉड्यूलो 2 था और 4 आ गया था पूरा, एंड दिस वाज समथिंग लाइक व्हाट 12 13 14 14th नंबर एग्जैक्टली, बट ये जीरो इंडेक्सिंग की वजह से 13th आ रहा होगा, वो +1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो एग्जैक्टली दिस इज 14th नंबर, बिकॉज 12 नंबर लिख चुका हूँ मैं, 13 14th नंबर इट इज, और इंडेक्सिंग इसकी जीरो होगी तो वो पहले ही हमने मैनेज कर लिया, 14 दिस इज द आंसर ना। 14 में तुमने देखा उसका अपर बाउंड लाइक 5, सो 5 + 1 6 पे ये आ रहा होगा, बिकॉज 1 को हटाना है, ठीक है, दिस ठीक है, जो होता है एक्चुअली लाइक कीपैड में, एंड आफ्टर दैट यू गेट 6 एंड देन यू सी मॉड्यूलो था क्या एक्चुअली, मॉड्यूल की वजह से +1 भी करा था हमने, बिकॉज इट वाज मॉड्यूलो समथिंग, दैट इज वाई हम 5 से 6 पे जंप करे। इफ इट वाज मॉड्यूलो 0 तो हम 5 पे ही रहते, लाइक 12 होता तो हम 5 पे ही रहते। सो 14 था तो इसलिए हम मॉड्यूलो 6 पे जंप करे, एंड मॉड्यूलो था क्या 2 था, तो हम उस पे भी 2 आगे लाइक हाँ 2 बार प्रेस करेंगे काइंड ऑफ या, एंड ओके, एंड सिमिलरली अगर इसका, तो मैं बस ये देखना है कि क्या ये जो रेंज है वो 7 में तो नहीं आ रहा, ठीक है। तुम्हें लगेगा 7 में, 7 के लिए नहीं, क्या तुम्हें देखना है 8 में या 9 में तो नहीं आ रहा, नहीं वो एस एस के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम टी के लिए चल रहे थे, तो टी की वैल्यू क्या थी, 15 16 17 18 19 20 20 पे चलते हैं। अब 20 को 20 की तरह से हैंडल करते हैं, ठीक है। 20 इज द एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि इससे पहले कितने नंबर आ चुके हैं, नो ब्रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नंबर आ चुके हैं, दिस इज द एग्जैक्ट 20 नंबर। सो इंडेक्सिंग की रेंज में इट वुड बी 20 -1, राइट, राइट 19। तो सबसे पहले तो हमने 20 कन्वर्ट कर लिया, देन हमने 20 डिवाइड बाय 3 देखा, 20 मॉड्यूलो 3 देखा, 20 डिवाइड बाय 3 हमें 6 मिला, एंड मॉड्यूलो देखा कुछ था तो हम 7 पे चले गए, ठीक है। ओके, गॉट इट। +1 भी तो करना था, +1 कहाँ रहेगा, +1 क्यों करना था, +1 क्यों करना था, डिवाइड बाय 6 देखा, 6 पे तो नहीं आ रहा होगा ना, सिमिलरली जब हमने 14 देखा था, डिवाइड बाय देखा था तो 4 आया था, 4 पे तो चांस ही नहीं था ना, +1 तो तभी कर दो, ठीक है, क्योंकि वन शिफ्ट, ठीक है। 5 पे अब चांस है, बट 5 का भी नहीं करेंगे क्योंकि मॉड्यूलर है, ठीक है, तो 6 पे जाएंगे। तो आंसर 4 आ रहा था, +1 करा 5 पे गए, फिर मॉड्यूलर था इसलिए 6 पे गए। सो आंसर क्या आया, 6 आया, +1 तुरंत कर दिया, 7 पे गए, मॉड्यूलर भी था, मॉड्यूल भी था, राइट, तो हम कहाँ 8 पे चले गए, यस 8 पे तो जाना ही था, तो मॉड्यूलो तो था ही। और मॉड्यूलो कितना था, मॉड्यूलो ज्यादा था, 2 था मॉड्यूलो, राइट 2 था मॉड्यूलो, क्योंकि हाँ, बट ये पहला कैरेक्टर क्यों बना, ये पहला कैरेक्टर इसलिए बना क्योंकि एस से ज्यादा था, तो मॉड्यूलो को माइनस कर दो। क्या तुम मॉड्यूलो को माइनस करोगे, नहीं, तो क्या करते हैं, उसको माइनस कर दो, हाँ, काइंड ऑफ कि नंबर को ही माइनस कर दो, और उस तरह से ट्रीट करो इसे कि 20 की जगह 19 आई है, ठीक है, उस तरह से ट्रीट करो बाकी सारे नंबर्स को। एस के लिए स्पेशल हैंडलिंग है, एस के लिए ऐसी हैंडलिंग है कि भाई देखो एस पी है तो भी माइनस करो, ठीक है, तो भी माइनस करो और उसकी तरह ट्रीट करो, इसको आर की तरह ट्रीट करो, आर को आर की तरह ट्रीट करो, एस को भी आर की तरह ट्रीट करो, बट हाउ विल यू देन डिस्टिंक्ट द डिफरेंस, अगर एस है तो बस एक और आ जाएगा, ठीक है, और टी को हम एस की तरह ट्रीट करेंगे तो ठीक है, 8 को एक ही बार दबाना पड़ेगा जो कि एस के केस में दबाना पड़ता, केवल एस के लिए स्पेशल हैंडलिंग होगी, एंड जेड के लिए स्पेशल हैंडलिंग हो जाएगी, और किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। इनसाइड हम ऐसे देखेंगे कि आर इक्वल टू आर और एस एक ही है, बट जब हम एक्चुअल कैरेक्टर को प्रोसेस कर रहे होंगे, अगर वो पहले ही एस था तो हमने ये पहले ही स्टोर कर लिया कि वो एस था, उसको 4 बार लिख देंगे, बट उसको आर की तरह ट्रीट करेंगे, और सेम आर का जो नंबर आता है 7 आता है, मॉड्यूलो 2 आता है, और मतलब बेसिकली 7 आता है, दैट इज वन थिंग, 7 प्रेस होगा, 4 पे प्रेस होगा, ठीक है। और टी को हम, अगर एस नॉर्मली होता तो एस टी की जगह पे आता, राइट, तो टी यू बी को हम ऐसे एस टी यू की तरह ट्रीट करेंगे, और बस मतलब इसके बाद अगर कुछ भी है, अगर इसका नंबर टोटल इससे ज़्यादा है, इसका जो भी होता है 20 होता होगा, 20 होता है इसका, व्हाट इफ दिस इज 25 24 23 22 21 20 19 18, इसका 18 होता है, ठीक है, तो अगर 18 से कुछ भी ज़्यादा है तो उसको एक माइनस कर दो पहली बात, एंड देन या या उसको ट्रीट करो, उसके लिए निकालो, एंड दैट्स हाउ यू डू इट। सो टी वी एक्स वाई डब्ल्यू ये सब हो जाएगा, जेड को स्पेशल हैंडल कर लो, ठीक है, ठीक है, जेड को स्पेशल हैंडल कर लो, या बस उससे हो जाएगा, ठीक है। ओके यार, इस पे इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, रैबिन काफ और पैटर्न सर्चिंग,
Again, pattern searching key, if you know one algorithm, you can do it, but do you want to know more algorithms? So there was Bohr-More and Rabin-Karp and but KMP is all. So देख लेते हैं ये हैशिंग पे वर्क करती है, दैट मच आई नो कि you have to test इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा. Patterns found at 10th index. How do we have to do this pattern and print all the occurrence of this and this? Okay, and this with that. So yeah, like yeah, hashing ऐसे कि uh, string matching algorithm will be one hash value of the pattern. Okay, hash value पहले calculate करेंगे and then hash value of the current substring text the hash value message then on the string so the hash value. So pattern itself are all the substring of length m hash values for the following strings of length m. You know what is length m? M is basically the yeah your pattern. तो हम लेंथ भी चेक करेंगे मैच करने से पहले हैश. तो हम देखेंगे कि भाई करंट सबस्ट्रिंग में प्रोसेस कर रहा हूँ, मेरे को इसके एम कैरेक्टर्स दे दो, जिस भी इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ उससे आगे के एम कैरेक्टर्स दे दो. मेरा हैश तुम्हारे पास रेडी है मेरे पास, और इसका हैश निकाल लो और देन हैश को मैच करो. आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या करो, आगे बढ़ जाओ. सिंपल. ओके. Since we efficiently cache the hash value and then we have function property hash at a next shift must be करंट हैश वैल्यू. ठीक है. तो नेक्स्ट शिफ्ट अगर तुम एक यूनिट से आगे बढ़ रहे हो तो तुम पूरी चीज दोबारा से मैच नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारे लास्ट के m-1 कैरेक्टर वहां पे शुरू के m-1 कैरेक्टर बन रहे हैं. तो हैश वैल्यूज में कुछ ना कुछ मतलब एक जगह दूसरा आएगा काइंड ऑफ. सो ऐसा कुछ कर लो कि 26 कैरेक्टर्स को 26 की पावर कुछ दे दो, और या डिवाइड बाय 26 की पावर कुछ कर दो एंड मल्टीप्लाई बाय 26 की पावर कुछ कर दो, या फिर एडिशन काइंड ऑफ. ओके, कर सकते हैं. हाँ, एज फार एज आई नो इसमें होता है कुछ लाइक 26 तो प्राइम पावर से कुछ मल्टीप्लाई होता है शायद. देखते हैं. या दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव अबाउट दिस कि हैश कैसे एफिशिएंटली कैलकुलेट करेंगे हम. एस से m-1 तक का था हमारे पास, s+1 से m तक जा रहे हैं. एंड रीहैश इंटीजर वैल्यू देता है. मॉड्यूलो भी यूज करते हैं बिकॉज इट कैन गो लॉन्ग. ओके. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिहैशिंग हैश ऑफ दिस कैरेक्टर s+1 से लेके m तक. जो भी उसका हैश था माइनस करा हमने जो कैरेक्टर हटा रहे हैं, प्लस करा जो कैरेक्टर डाल रहे हैं, इनटू दिस डी हैशिंग. अच्छा. मॉड्यूलो क्यू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द अल्फाबेट. अच्छा. 234 का तो मैं हैश पता है, 345 का निकालना है तो 234 माइनस 200 कर दिया इंटू एच इंटू दिस. तो हमें मिला 34 इंटू 10 कर दिया फिर हमने, बिकॉज ये अब एक शिफ्ट होगा और +5, इसलिए यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे माइनस करते हुए एच से मल्टीप्लाई करा था. वर्स्ट केस एन एम. ठीक है. let's see this word graph. Given array k equal to 6, output 10, given line
6 characters, line number 1 from word to 1, word number 2 to 3, number 4 to 4, total cost, first line, अच्छा word wrapping करना है, okay, got it. So basically हर line में you have minimum space left, minimum as a total cost is the cost of lines with number of extra spaces in the line, okay. Next permutation, 1 2 3 6 4 5, so yeah, this we can look at exactly. यहाँ से स्टार्ट करो 4 से, यू सी कब ये जाके इंक्रीजिंग हो जाएगा, 4 5 इंक्रीज होंगे, दैट इज इनफ फॉर अस। कब ये जाके डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, 4 5 6 3, दिस नॉट गुड फॉर अस। तो अभी हम यहाँ से मैं निकाल लूँगा कि भाई 3 का अपर बाउंड, इसलिए ये तो सॉर्टेड था, ठीक है, 3 का अपर बाउंड का 4 है, और अपर बाउंड क्यों, लोअर बाउंड क्यों, 3 को 3 से सॉर्ट करो 3 इसमें, और इसको हम सॉर्ट कर देंगे, दिस इज द थिंग, ठीक है। सो भाई of I is greater than a of I plus 1, हम I माइनस माइनस करते रहेंगे, और सेट मेंटेन करना पड़ेगा, सेट की दिशा हम उल्टा चल रहे हैं, काइंड ऑफ कर सकते हैं मेंटेन इफ यू वांट। स्टैक में स्टोर करते रहो, तो हमें सॉर्टिंग तो वैसे सॉर्टेड तो ऑलरेडी है, तो वेक्टर में पुश करते रहो, वी आई माइनस माइनस वी डॉट पुश बैक, सबसे पहले यही कुछ होगा एंड सो ऑन। So n minus 1 से start होगा, n minus 1 is greater than n minus n minus 2 is greater than n minus 1, तो पुश करना पड़ेगा, अगर ये नहीं होता या इक्वल इक्वल तो हमें करना ही है, क्यों इक्वल है तो रुक जाएगा, जैसे दोनों इक्वल है हमें रुक गया, हमें पर इसको ऐसा आपको फायदा नहीं है। सो 3 3 भी होता है अगर, ठीक है, 3 3 and there is 5 6, so and there is 1 2, इसका मतलब निकालना है, एज यू कैन सी इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि 1 2 5 का 63 पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो अब 6 आएगा एंड 3 3 5 कर दो, 6 आएगा और सॉर्टेड आएगा, इसको हम ऐसे बोलेंगे बिकॉज दिस वाज पूरा ही, ठीक है, और यही होता है हर जगह। सो 3 3 3, क्या ए ऑफ आई माइनस 1 इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई है, नहीं, इक्वल भी होता भी चला, तो तुमने पुश कर दी थी तब 3 पे, क्या ए ऑफ आई माइनस 1, हाँ भाई पुश कर, क्या पुश कर, और ये सारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो भाई क्या हुआ नेक्स्ट, sorted order, ठीक है, ठीक है। So if I becomes less than 0, return what, sorted order, return b, ये तुमने बना लिया है बिल्कुल sorted order, this is a sorted order, 4 5 6 ऐसे ऐसे हमने पुश करा है, तो 3 3 6 एंड इसके बाद जो भी था 1 to 5 whatever, अभी इसके बाद this is the current character which is not matching, और हमें क्या करना है, बी में इसका लोअर बाउंड ढूंढना है, and id is equal to lower bound v dot begin v dot end, कैरेक्टर हमारा है a of I, इवन इक्वल टू चाहिए या इक्वल टू से बड़ा चाहिए, +1 चाहिए, lower bound v dot end a of I plus 1
इक्वल रेट वाला कोई फ़ायदा नहीं है और ऑब्वियसली वो मिल जाएगा बिकॉज़ वहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर टू रहा है मतलब ये या इंक्रीजिंग ऑर्डर टू रहा है मतलब इससे बड़ा एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये ही 6 ले लेता मैं बट या लोअर बाउंड ही लेंगे और हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे स्वैप ऑफ ए ऑफ आई कॉमा ए ऑफ आई डी और मैं ट्रैक रख पाऊंगा इसका कैसे वो इंडेक्स कौन सा था जिसने स्वैप करा और फिर इसको हम सॉर्ट कर देंगे ठीक है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बी मेरे पास ऑलरेडी है विच इज़ द करेक्ट सॉर्टेड ठीक है और इसमें हम इस एलिमेंट को हटा के 3 रख देंगे और 3 से रिप्लेस नहीं कर सकते बट 3 को इससे रिप्लेस कर सकते हैं और बी में हमने स्वैप कर देंगे ए आई से ठीक है स्वैप बी ऑफ आई डी को ए ऑफ आई डी से क्या ये चीज़ ए आई पे उठा के वी आई डी की वैल्यू रख देगी और क्या ये चीज़ वी आई डी पे उठा के ए आई डी की वैल्यू रख देगी we could have also done like VID equal to AID. Okay, ठीक है करते हैं देन अभी मैं कह रहा हूँ कि ए आई मतलब जो इंडेक्स था सॉर्ट कर दो उसको पहले वी को एंड फॉर अगर 1 to 3 होता तो क्या होता 3 देखता कि 2 इज ग्रेटर देन 3 और नॉट नहीं है 3 को पुश तो करते हैं 12 खाना ना खा सकता पहले बाद में करते हैं अभी मैं पुश करता हूँ तो ये ऑफ आई तो ये लास्ट एलिमेंट तो कुछ होगा ही या फिर माइनस वन कहता हूँ एंड अगर ये ऐसा है तो ये होगा ठीक है आई जस्ट वन अभी
P of I is equal to V of I return A विक्रम बाज के बारे में। ठीक है, मतलब वही है काइंड ऑफ, तुम्हें लास्ट से डिक्रीजिंग देखना है, लाइक एंड डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, या उल्टा आ रहे हो राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, इंक्रीजिंग देखना है। एंड इंक्रीजिंग 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 जब स्टॉप हो जाए, जब छोटा एलिमेंट आए, इसका मतलब यहाँ से कुछ एक बड़ा उठेगा और छोटे को रिप्लेस करेगा, जो कि जो कि छोटे जो उस ए ऑफ आई से जस्ट बड़ा होगा, सो जस्ट बड़ा हमने कर दिया, रिप्लेस कर दिया और उसके लिए वो आ गया एलिमेंट एंड सॉल्व कर दिया हमने आई प्लस minus p dot begin, that was the main thing, and sort कर दिया v को 1 2 3 तक मैंने उठाया, इसको मैंने सॉल्व करा ऑफ आई डी सॉल्व करा, पहले आई डी गेट करा देते हैं चीज, तो p of I is very important। क्या तुम आंसर यूजिंग 0 1 2, ठीक है भाई, आई की वैल्यू चाहिए, ये कुछ शॉर्ट कर p of I से p of ID क्या मिला, या एक्चुअली 0 ही मिला था, ठीक है 0 मिला, सो p of 0 क्या है, p of 0 4 है, सो आपकी मैथ, ठीक है, तो टीपी की वैल्यू बचा लो, p of I की वैल्यू बचा लो, p of I is equal to p of ID and p of ID is equal to p of I। अब देखिए 1 to 4 तो हो गया सॉर्ट, ये कैसे होगा, b है क्या एक्चुअली, इसको p of I प्लस p of I नहीं ब्रो, p of 0 I minus I x plus plus x equal to 0 2 0 हटा दो 1 2 4 4 5 6 बाकी तो p of ID equal to सारा p of I चेंज हो गया था, टीपी कर सबमिट कर दो सीधा, दैट वाज करेक्ट, लाइक मतलब टीपी करके वो लिख आ जाएगा, सो दैट वाज द थिंग, ऐसे हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन इंप्लीमेंट होता है। ओके गाइस, एनीथिंग एल्स व्हाट स्प्लिट बाइनरी स्ट्रिंग टू नंबर्स, या देख लेते हैं, हाँ ठीक है, नंबर and let us find the maximum count of consecutive substring str that can be divided into such that all the substrings are balanced, they have equal number of zeros and ones. So given the binary string str, the task is to find the maximum count of consecutive substring str can be divided into such that str is balanced. What given a string, split the binary string into substring with equal number of zeros and one. So given a binary string, you have to split it into substring with equal number of zeros and equal number of ones. So zeros and one has to be equal in the substring. Is it always possible? What if all are zeros? Return minus one. Okay, so yeah, so whenever you see some zeros and then you see some one, इसका सबसे best way है कि just to see your
sum starts from 0. As soon as you see 0, do minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Then as soon as you see 1, 1, 1, 1, 1, and whenever again your sum becomes 0, you say this is my thing, this is my thing, and you stop it. So minus 1 and 1, 0. Again you see some 0, so this is your thing. So double 0, double 1, then you get this is your thing, this is your thing. Yeah, so sum approach is good for us, good for this. Obviously, like sliding window approach can be done, and that would take something. But sum approach is more good for just uh, just to treat your 0 character as a value, integer value minus 1. Treat your 1 character as integer value plus 1. So initially you're starting with sum equal to 0, then you see some 0, then you do minus 1 based on that, then you see some 1, then you do plus 1 based on that, and so on, so on, so on. And you find some 0. It means the number of zeros and number of ones are exactly equal in this part. Then you can just take out this part. So this is the minimum that part, and that is what you can do. It is substring. So these are all substring. Yeah. Hmm. Yes. So why are we doing this? Why are we not making a substring equal to 0 1 and double 0 double 1? Even that is fine, right? Why are we not combining this string and returning that string? Even because the counter thing is, my counter thing is that even this string which is given to you is also a valid string. This has equal number of zeros and ones. So why are you not returning that answer? No one is asking you like, is it a good or not? You have to find the maximum number of splitting that you can do. So this is the maximum count of consecutive substring. That's why we are doing this. Every combination of these two substrings are also having equal number of zeros at once, but we have to look at the maximum splitting. So that's how we do maximum splitting. As soon as you see 1, as soon as you see your sum equal to 0, just break it and then start a new plus 1 minus 1. Yeah, kind of. Okay, very well.